जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, कुर्बानी का जानवर, बल्कि मुझे पहले ये इब्तिदा करनी चाहिए कि सुन्नत इब्राहिमी में तकरीबन 13-14 दिन रह चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली। अगर कुछ दिन आगे पीछे हों तो मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन 2 हफ्ते अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम अगर हम कहें तो रह चुके हैं। तो मार्केट में जानवर भी आ चुका हुआ है। अगर मेरे कैमरामैन साहब आपको दिखा सके, इस वक्त मैं अगर ये बात कहूँ कि पाकिस्तान की बड़ी मार्केट या वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स इन पाकिस्तान शाहपुर कांजरा में मौजूद हूँ, और यहाँ पर आम आदमी भी देखें नज़र आ रहा है। आज 15 मई 2026 है और ख़रीदार भी नज़र आ रहे हैं, जानवर भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन असल जो सवाल है जो आप जानना चाहेंगे वो ये है कि इस वक्त छोटा जानवर यानी बकरे, दुम्बे, ठीक है जी, भेड़ और जो बड़ा जानवर है, क्या एक आम आदमी की पहुंच में है? जिन्ना तक मेरी जिंदगी है, मेरे बच्चों की जिंदगी है, और मरियम नवाज के नाम की कुर्बानी असीं करते रहांगे अल्लाह दी रहमत नाल। ते इत्थे लहाना ही मैं मरियम नवाज, इत्थे लहाना ही ओए किधर गई हो, इत्थे लहाना ही मरियम नवाज, इत्थे लहाना ही नून लीग, जिन्नों तक मेरी जिंदगी है। मैं इश्क कर बैठा, कसम खुदा दी मैनूं नहीं पता लगा मरियम नवाज की है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਕਿ ਧੀਆਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਨੇਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜੇਦਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਸਮਝੋ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਸਮਝੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਨਦੇ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ। ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸੀ ਚ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਕ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਹੱਥ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੱਥ ਲਵਾ ਲਿੱਤਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਓਏ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਉਹ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਸਰ, ਬੱਕਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂਗਾ। 3 ਦਿਨਾਂ ਚ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼, मैं अगली ईद तक बैठा रहांगा सर जी, अगली ईद तक बैठा रहांगा अल्लाह दी रहमत नाल। 3 दिन तक इंतजार करांगा, पहली ईद, दूसरी, तीसरी, ना इतने आखिर अगली ईद तक बैठा रहूँगा। क्या रेट है इनका? इनका 4.5 मांगता हूँ दोनों का। 4.5। आप कितना दे रहे हैं? गल शुरू ही हुई, किन्ने रैत की करते हो जी? बिस्मिल्लाह हुक्म करो सर, तो सही आर्डर लाना सर। डेढ़ ठीक है। नहीं थोड़ा सा दोंदे, दोवें बकरे, दोवें बकरे दोंदे ने, 2 होर लेने ने। मैं ताबेदार सर देंगा ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮਨਾਸਬ ਮੁੱਲ ਲਾਓ। मैं 40 नहीं किया तेनू, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। डेढ़ ठीक है मुनासिब ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ यार। ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। नहीं ते नहीं गा कि जो देने ने किसी ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ देना, मैं ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਰ तोहफा देना आपने? ਤੋਹਫਾ देना। कुर्बानी का जानवर तोहफा होता है? हथ ते लवा लांगा, छुरी ਨੂੰ हथ लवा लांगा। वालदा का, वालिद साहब का, किसका? मैडम मरियम दा। मरियम नवाज शरीफ साहब, ਦੋਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ, ये दोनों। ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮਜ਼ਾ ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ। वो कितने लेते हैं? ਉਹ ਘਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। वो हमजा शहबाज दे ते 2 मरियम साहिबा दे, ए 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਮਰੀਮ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਟੀਏ 'ਚ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਪੀਡੀਏ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਕਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲੀਗ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਦੋਸਤ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ? ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਪੀਟੀਆਈ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। 416 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ, 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ, ਡੀਜ਼ਲ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਕੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਮੁੱਲ ਹੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈਜਾਨ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਵਾਮ ਖੜੀ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ। ਇਹ ਬੱਕਰੇ ਪਾਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਬੋਲੋ ਨਾ, ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਰੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਰੇਟ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪੱਠੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਖਾਲੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਨਾ ਭਾਈ ਜਾਓ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਜੇਕਰ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਾਂ 50,000 ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਭਾਈ, ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਲੈਂਦਾ ਸੀ? ਮੁਰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਤਖ ਕਰ ਲਈ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੁਰਗੀ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ, ਮੈਂ ਤਦ ਲੈ ਰਿਹਾ। तो कोई कारोबार करो उस पैसे का, या कोई, चलो ठीक है, मैं फिर तो मेरे ते इल्जाम अल्लाह और दे देगा, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ। ठीक ਦੰਦ है, ਕਰਦੇ ਪਏ ਯਾਰ। नहीं नहीं, मैं तुसी का मेरे ते इल्जाम। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਨਾ, हाँ हाँ, ਅਗਲੇ ਕੋ ਗੱਲ ਲੈਣੀ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ। नहीं मरियम दे ना, मरियम साहब दे ना दो कुर्बानी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਲਵਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਛੁਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਹੱਥ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੱਥ ਲਵਾ ਲਿੱਤਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਓਏ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਉਹ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਸਰ, ਬੱਕਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ, ਛੁਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬੱਕਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਢਵਾਓ, ਯਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਨੇ ਤੇ ਨੀਅਤ ਕਰੋ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਮਰੀਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇਣੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਤ ਹੀ ਨੇ। ਕਿਹਦਾ? ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਛੁਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾਉਣਾ। ਚੋਰੀ ਦਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵਾ ਦਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵਾ ਦਾਂ। ਕਾਲਕ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ, ਕੱਲ ਕੀ ਕਰਨਾ? वो तो कहे वो पीछे नौजवान ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕਿਆ ਕਰ, ਗੱਲ ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦਵੋ ਦਵੋ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ। ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਵ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਛੁਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਏਗੀ। ਉਹ ਛੁਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ, ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਲੀਡਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਹਾਣਾ ਹੀ ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼, ਇੱਥੇ ਲਹਾਣਾ ਹੀ। ਓਏ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਈਓ? ਇੱਥੇ ਲਹਾਣਾ ਹੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼, ਇੱਥੇ ਲਹਾਣਾ ਹੀ ਨੂਨ ਲੀਗ, ਜਿੰਨੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਈਦ ਨਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਈਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਈਦ ਨਾ ਬਗੈਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੇ 3 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 3 ਦਿਨ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗਾ ਉੱਥੇ, 3 ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਈਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ? ਨਹੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੁਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਠਾ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਈਦ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਈਦ ਹੋਣੀ ਮੇਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਈਦ ਉੱਥੇ? ਮੇਰੀ ਈਦ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ, ਉਸੇ ਛੁਰੀ ਬਾਤ ਲਾਵਣੀ ਥੀ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੂੰ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਛੁਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾ। ਚੱਲ ਜਾ, ਜਾਸਾ ਨਾ ਜਾ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਰੀਮ ਕੋਲ ਲਵਾਣਾ ਹੀ। ਜਾ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਸਾ ਸੀ। ਜਾ ਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਲਵਾ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਜਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਓ ਦਾ ਹੱਥ ਲਵਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਲਵਾ ਸਕਦਾ, ਪਿਓ ਦਾ ਲਵਾ ਲਾ। ਪਿਓ ਲਵਾਸਾ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਲਵਾਸਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਬਾ ਮੰਨ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂ? ਉਹ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਮੰਨਣਾ, ਤੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਿਓ ਮੰਨ ਲਾ। ਅਸੀਂ ਰਹਿਬਰ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਹਾਂ ਰਹਿਬਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਰਹਿਬਰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਬਾ ਮੰਨ ਲਵੇ ਯਾਰ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅੱਬਾ ਮੰਨ ਲੈ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ। ਸਰ ਜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਅਸੀਂ ਰਹਿਬਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਏ। ਜਦੋਂ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਬਾ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਲਵਾਂਗਾ ਬੱਕਰੇ। ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦੇ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਫਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈਗਾ,
ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸੀ ਚ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਕ ਲੀਡਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈਗਾ ਮੰਨ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੰਨ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਬਈ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਨ ਗਿਆ ਚਾਚਾ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਤਸਬੀਹ ਪਰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਬੁਰਾ ਮੈਂ ਸੁਹਾਬੀ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਰਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰ ਲਓ ਪਿਓ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਧੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਰ ਆਪਣੇ ਲਓ ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਆਪਣੀ ਲਓ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਹ ਸਰਬਰਾਹ ਹੈਗੀ ਜੇ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ ਸਰਬਰਾਹ ਸਰਬਰਾਹ ਇਹਨੇ ਮੰਗੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾ ਮੰਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਪੀਸੀ ਪਈ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਇਓ ਜਿਸਲੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਬਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਵਾਮ ਸਾਰੀ ਪੀਸੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਭਾਈਜਾਨ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਮੇਰੇ ਸੁਣੋ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨੇ ਲਿੱਤਾ IMF ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਲਿੱਤਾ ਮੈਂ ਲਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਚਾਚਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅੱਛਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਮੰਡੀ ਅੱਛੀ ਬਣ ਗਈ ਮੰਡੀ ਮੰਡੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣੀ ਹੈ ਕੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਬਣਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਬਣਾਈ ਮੰਨੋ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਦਾ دیਵਾਨਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਏ ਮੰਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਤੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਅੱਛਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਜੇ ਮਰੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ ਬਦੇ ਉਹ ਬੋਲ ਹੈ ਆਹੋ ਕੌਣ ਜਿੱਤਾ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਮੈਂ ਖਲੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ 15 ਸੀਟਾਂ ਜੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ 15 ਆਵੇ ਸੀਟਾਂ ਸਰ ਉਹਦੀਆਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ 15 ਸੀਟਾਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਦੀਆਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀਆਂ 15 ਸੀਟਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ PTI ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 2018 ਚ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਸੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਜਿੰਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਜਮਾਈ ਦਾ ਲਾ ਲੇਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਰ ਮੁਖਤਸਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾਏ 2 ਬੱਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ 2 ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ 2 ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲੈ ਲੈਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ 170 ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜ਼ੇਨ ਹੈਗਾ ਖਲੋਇਓ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੋ ਨਾ ਫਿਰ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਚਾਚਾ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਾਨ ਤੇਰਾ ਖੈਰ ਹੋ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੋੜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੂੰ ਠਹਿਰ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਦਵਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੰਗੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ 4.5 ਕੀਤਾ 4.5 ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਮਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਲਵਾਂਗਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂਗਾ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਖਰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੌਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਰੋ ਸੌਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇ ਹਾਂ ਕੀ 140 ਲੱਲਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਗੇ 1.5 ਗਏ ਹੁਣ ਅੱਜ 20 ਦਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ 5.5 ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ तू 7.5 नहीं चला गया नहीं अगर आज रात तेल महंगा हो जाता है तो आपका क्या पैगाम है कौम को लीडरों को सबर करन सबर करन एनु जरूर 500 देना एदन पे हमना मार यार एदन मारी कैमरा तेरे में एनु जरूर 500 देना दी बड़ी चाहत ही अल्लाह दे बंदे अल्लाह दे अजाब को डरो अल्लाह दे खौफ को डरो कि अगर महंगाई यार जैसे हो गया 500 मेरी गल सुनो जैसी वाम वैसा हुक्मरान समझ आएगी नहीं ये साडी सजा है किन्ने दा लियांदा वे प्लास्टिक दा लियांदा हवा भरी 30,000 रुपए दा यार चले बात ये व्यूअर्स ये अलामा साहब हैं अलामा साहब चलें ठीक है अब आपने ये रेट लाया वे ओदी मर्जी दे देवे 1.5 लाख एक बकरे का 140 140
ਨਹੀਂ ਸਰ, ये बारे नहीं है। ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਮੈਂ 2 ਲੱਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਾ। ਅੱਗੋਂ ਕਮੇਟੀ ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਲਿਆਣੇ ਨੇ, ਘਿਓ ਵੀ ਲਿਆਣਾ, ਤਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਕਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। अगर 3 दिन मरियम साहबा ने टाइम ना दिता होते ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ 3 ਦਿਨ ਤੇ ਪੱਕ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। तो अगर ना बाहर आए हो ना टाइम ना दे सके ਨਾ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਈਦ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਅਗਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਈਦ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਗਲੀ ਈਦ ਆਣੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਈਦ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਪਲ ਦਾ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਲੇ ਪਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੁਣ ਲਓ, 3 ਦਿਨਾਂ ਚ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਈਦ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂਗਾ ਸਰ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਈਦ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂਗਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ। 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਈਦ, ਦੂਸਰੀ, ਤੀਸਰੀ, ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਅਗਲੀ ਈਦ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਇਹ 6 ਲੱਖ ਮੇਰੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਣਾ ਸੀ। हाँ जी, ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਣਾ ਸੀ। 1 लाख रुपया। ਮੇਰੀ ਧੀਆਂ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਦਾ ਜੇਦ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਮਬਖਤ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਕਿ ਧੀਆਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਨੇਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜੇਦ ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਵਾਰ ਰਿਹਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਸਮਝੋ यार, मेरा इश्क समझो। अल्लाह ताला अल्लाह आपके इस जज्बे को कबूल करे। नहीं, लीडरों से प्यार हो जाता है सर। मैं की करा, नहीं मानता दिल मेरा, नहीं मानता। नहीं करो जी। हमजा साहब ने मरियम साहिबा ਲਈ करो। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਥਰੂ। मेरा दिल भी करता मैं अपनी धी ਲਈ कुछ बनावा, लेकिन अल्लाह और दे देगा यार। लेकिन अपना इश्क ते निभा लवा। फार्मूला बताऊं जिससे वजन निकालते हैं। चले बताएं फार्मूला जिससे वजन निकालते हैं। हाँ ये देखो फार्मूला में वजन निकालने का फार्मूला बकरे का। लगा भाई, इसका वजन कितना है? वजन कितना होगा 48-50 48 किलो। 48 या 50। चलो जी, मैं अभी देखता हूँ, एग्जैक्ट बताता हूँ। नीचे से आपके अंदाजा कर ये देखें नहीं, इधर 38 39 है जी। सुन लिया। उसके बाद आपने लाना है इधर से इस गुमटी तक, ये बता 34। ठीक है, पहले था इसका 39, तो मैं जी यानी गोलाई इसकी 39 है। हाँ 39 ज़रबे 39 ज़रबे कितनी थी? 34 34 तकसीम 660, इसका 78 किलो वजन है। जिंदा? हाँ जिंदा। 40 किलो का गोश्त होएगा। हाँ, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 40 किलो वजन गोश्त होगा। बिल्कुल होगा। हाँ होगा। ये तरीकाकार जरा देखने वालों को बता दें ताकि किसी के काम आए। व्यूअर्स, अगर आपने ये देखना है जो आप बकरा ले रहे हैं उसका वजन कितना है? गोश्त नहीं, इसको मैं इसका भी कर देता, इसको लो जी, मैं कर देता। लो जी, ये आ गया है 40। ये 40 इसकी गोलाई है। हाँ जी। अब इसकी दुमची से लेके इधर तक है, इधर या टी तक, दुमची से लेके हाँ इधर खींचे थोड़ा सा टाइट करके, ये इधर तक, ये आ गया 32। पहले कितना था? 40 गोलाई। 38 ज़रबे 38 सबे कितना था? 32। ये 70 किलो का है। सर जरा आप ये बताएं देखने वालों को ताकि 70 उनके। किलो का है जिंदा, तो 35 किलो वजन। अच्छा, आप जरा बताएं आप करते कैसे ताकि देखने वालों को समझ आए। मैथमेटिकल कितना बताया? क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? सबसे पहले इसकी गुलाई गुलाई है ना, उधर उधर करके ताकि जो गुलाई है ना वो हम मैयर कर लेते हैं। ठीक है। और पीछे और इधर दुमची से लेके इधर तक इसको मैयर कर लेते हैं। इधर तक, ये टांग तक, अगली टांग तक। ठीक और है। गुलाई को 2 दफा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। गुलाई को 2 दफा 2 बार। मल्टीप्लाई करना है। अगर वो 40 है तो 40 ज़रबे 40 हो गया। ठीक है। और अगर इतने 30 है तो ज़रबे 30 कर दो। इसको भी 2 दफा मल्टीप्लाई। No, one time, one time। अच्छा, जो लंबाई है उसको 1 One दफा, time, yes। गुलाई को 2 दफा। 2 दफा। और जो जवाब आएगा उसको तकसीम कर देना 660 से। 660 क्यों? 660 उसमें ना मेजरमेंट है केजी में कन्वर्ट करने के लिए ना, उसको किलोग्राम में हम किलोग्राम में फिर convert बकरा करें। उतना निकलेगा। उतना जिंदा उसका वजन होगा।
जिंदा। हाँ, ये कंफर्म है या एक जुगाड़ है? कन्फर्म पहले उन्होंने 40 तरफ 40 जो और तरफ जो बत्ती किया है वो है वॉल्यूम। ठीक है। जब वॉल्यूम को ये तकसीम करते हैं 660 पे, फिर वो उस टोटल उसमें केजी आ जाते हैं ठीक है। और ऑलमोस्ट 19-20 के फर्क से थोड़ी सी एरर से ये एग्जैक्ट कपड़ों समेत यानी पूरा जो है ना जिंदा का वजन होता है ये। जिंदा का वजन हाँ जी, होता है। जिंदा का वजन होता है। ठीक है, तो आप लेने आए हैं बकरे? हम भी लेने आए हैं। आप हम 1 लाख रुपए तक मांगते हैं, देने वाले 1.5 लाख मांग रहे हैं। इतना फर्क है, रेट का इतना फर्क है। हम 2 घंटे से फिर रहे हैं। आप 1 लाख दे रहे हैं? हम जिसका 1 लाख देते हैं वो 1.5 मांगते हैं। वो सौदा 1.25-30 में हो जाएगा। हो या ना हो, हम 1.25 में नहीं लेना चाहते। हम समझते हैं 1 लाख का होना चाहिए। ये इतना फर्क है इस मार्केट ना मिले। महंगाई के क्या हालात हैं इस दफा? आपको लगता है महंगाई है मार्केट? महंगाई तो है, दफा से 40-50 जानवर बढ़ा हुआ है पिछली दफा से, पिछले साल की तरह। लेकिन मेरा हिसाब ये है कि ये जो मैं लाख का मांगता हूँ, ये पिछले साल भी लाख का लिया था। वो वाकई इस वक्त 1.25 लाख में ही मिल जाए तो मतलब है गनीमत जाना जाए। यार इस तरह नहीं पता लगता पर कसाई लेके जान इस तरह वो पागल यार। मैं भी तो कसाई हां वेला मैं कसाई दी शक्ल वाला नहीं भाई इस तरह केड़ा पता लगता। तू सियाना हो गया, ਅਸੀਂ सारे पागल हो गए। सर ये आपने अभी एक और मैच मैंने करवाना है आपसे। आपको देख के बता दिया ये 35 किलो है। हमारा 24 घंटे का अंदाजा, हम 16 साल से थे जब से हमारा काम कर रहे हैं। वो गोश्त कह रहे हैं 35 किलो और ये जिंदा 70 किलो। हाँ, और जाहिर है आधा गोश्त होता है। ठीक है, हमारा फार्मूला भी ठीक है, इनका भी ठीक है फार्मूला। हमारा 50-50 होता है। हम भी झूठ नहीं बोलते, लेने वाला जो मर्जी का है। आजकल नई डेवलपमेंट है, वो पमैशी फीते पकड़ लेते हैं, कोई कुछ करता है। हमारी अपनी इतनी मतलब है वो क्या कहते हैं समझदारी है या इतनी हमारी वकलमंदी है कि हम हाथ रखते हैं ना तो हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर कितना गोश्त है। अच्छा, आप इस पे हाथ रखेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा। सर जरा आए आगे। ये मैं आता हूँ, इसके पास आता हूँ। अब ये जोड़ी खड़ी हुई है ना, जी जी। तकरीबन मेरे हिसाब से तकरीबन एक ही लेवल है इनका। ठीक है। ना कोई कमी है ना कोई बेची है। और मेरे हिसाब से ये प्लीज सर जी जी, ये कम से कम 60-65 इसमें है इनका गोश्त। 50 से नीचे नहीं है गोश्त जो है गोश्त प्योर। क्योंकि हमारा अपना तजर्बा, मैं तो पहले भी आपको बता रहा हूँ, हम हाथ रखते हैं ना, हम हाथ रखते हैं तो हमें पता चल जाता है। हमारा कारोबार उस वक्त से चला आ रहा है जिस वक्त एक बकरे की कीमत 10 आने 12 आने होती थी। ये मैं तब की बात बता रहा हूँ। लेकिन उस दौर आज से 50-60 पहले की बात और आज वो लाखों रुपए में बात आ गई है। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने जिसको दिया हुआ है ना वो आज भी खरीदनी है। ये तो दिल की बात है, ये पसंद की बात है, दिल की बात है, पैसे की बात नहीं है। जिसके नसीबों में ये होते हैं ना वो ले लेता है। और ये अल्लाह की रज़ा भी इसमें शामिल है। बाज़ का लोग लेने के लिए आते हैं तो 5,000-10,000 पे सौदा रह जाता है, चले जाते हैं। चले इसलिए जाते हैं उनको नसीब में नहीं है। ये सारे नसीब और मुकद्दर की बात है। आप मीडिया वाले आप आ रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं, इंटरव्यूज कर रहे हैं, आपके वायरल हो जाते हैं, आपको बेनिफिट मिलते हैं, उसके फायदे होते हैं। ये मैं आपको सच कह रहा हूँ ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये भी इसी तरह ये कसाई। अब मेरा एक अपना स्टाइल है, लोग आ रहे हैं, झूम इकट्ठा हो रहा है, चले गए, मैं आराम से बैठ गया हूँ। मैंने ये जोड़ी निकाली हुई है, एक ये मैंने लेना है और एक ये मैंने निकाला हुआ है। ये मैंने खरीदने आए हैं? जी मैं खरीदार हूँ, नॉट बी ओनर, मैं खरीदार हूँ। मैंने भाई से पूछा है ये 2.40 मांग रहे हैं, ऐसा ही है। मैंने अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इनका रेट लगा दिया है। अब मैं आराम से बैठ गया हूँ। अब मेरी क्या मतलब है, अपना ट्राई है और दे दो यार, आपकी मेहरबानी है यार, क्या करते हो यार, प्यार मोहब्बत। और मैंने इसको डालन है, इसको गिरा लेना है। मैंने ये नहीं करना, नहीं मैं चलने यार, नहीं। देखें वो कहते हैं ना प्यार मोहब्बत से जान भी ले लो, तो हम तो इनसे प्यार करते हैं। आप लोगों ने और भी इंटरव्यू लिए होंगे, लेकिन जो हमारा इंटरव्यू है ना, मैं इसलिए भाईजान आपको कह रहा था मेरे पास आए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन आप चले गए हैं। फिर मैंने आपको आवाज दिया यार, सही इंटरव्यू देने वाले तो इधर बैठे हुए हैं और सही लाहौरी आपके पास है। इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले के हम लाहौर में। अच्छा, ये जो पेट्रोल डीजल की कीमतें, महंगाई, आप समझते इसका इम्पैक्ट पड़ता है या ये सब रोना धोना है? नहीं, रोना धोने की बात नहीं है। हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत ज्यादा है। सबसे पहली बात यह है कि दरमियाना तबका बहुत मुतासर हुआ है डीजल बढ़ने से, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से। जाहिर है हर चीज़ इफेक्ट होती है, हर चीज़ के रेट ज़्यादा हो जाते हैं। जो मिडिल तबका होता है ना, सफेद पोश, वो बेचारा पिस जाता है, उससे हिम्मत नहीं रहती और वो अपनी इज्जत की खातिर वो जैसे भी है वो अपना घर बार चलाता रहता है।
वो बहुत इफेक्ट होता है, उसमें बड़ा असर होता है। लेकिन मैं अपनी गवर्नमेंट से, जो हमारी गवर्नमेंट है, इससे गुजारिश करूँगा कि पेट्रोल और बिजली और सब के रेट जो है उनके ऊपर वो चेकअप रखें, ताकि इंसान का जीना जो है ना आसान हो जाए, उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। ये लोग दूर से आते हैं बेचारे सौदा देने के लिए, अल्लाह ताला इनके भी कारोबार में बरकत अता फरमाए। इनके लिए अंकल, मैंने आपकी बात से अंदाजा लगाया, आप व्यापारी से बहस नहीं करते, फिर प्यार से उसको प्यार एक हमारी एक ऐसी जुबान है, लाहौर के रहने वाले हैं, वो कहते हैं ना, मैंने पहले भी बताया आपको कि प्यार से यार अगले की जान ले लो। अब मैं बैठा हूँ, इसको मैं प्यार कर रहा हूँ, इसने मेरे लिए चाय भी मंगाई है, सब कुछ किया, मैं भी बैठा हूँ। इसका हमसाया, उसको भी मैंने बताया, मैंने कहा यार मेरे लिए तू भी हेल्प कर। वो कहता है साहब चाहे इसको नुकसान हो मैं आपको जोड़ी लेके दूंगा। मैं बैठ गया हूँ, उसने भी मुझे तसल्ली दी है, आप पूछ सकते हैं उससे, वो खड़ा है वो सामने। वो मतलब है साथ वाला, अल्लाह का शुक्र है, और मुझे 100% उम्मीद है मैं लेके जाऊंगा। यानी आप प्यार की जुबान से प्यार ऐसी चीज खरीदते हैं। और प्यार तो सारी चीजें हैं यार, आप बाहर हो, घर हो, जिधर मर्जी हो, प्यार से दुनिया चलती है। कोई कहे आप ईरान के साथ कोई प्यार नहीं कर रहा, तो ईरान कैसे आंखें निकाल रहा है? तो जी अगर प्यार मोहब्बत से डायलॉग कर लें, सब कुछ कर लें, तो सब कुछ क्लियर हो जाए। बात सही है कि नहीं? डूंगी गल है, लेकिन बात दुरुस्त है जी। प्यार जो है ना, प्यार हमारे बुजुर्गों ने बताया हुआ है कि आप प्यार से जिंदगी गुजारेंगे तो आपकी जिंदगी बेहतर गुजरेगी। लड़ाई झगड़ा नफरत कशीदगी, इन चीज़ों में बरकत नहीं है, फ़ायदा नहीं है। जो मर्जी कर लें, आखिरकार डायलॉग से, प्यार से, मोहब्बत से सब कुछ हो जाता है। ये हमारा बच्चा है जो दुबई से आया है, दुबई में रहता था, अब दुबई से इसी सिलसिले में आया हमारे साथ कि नहीं जी आप चलें, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आप हमें लेकर दें। तो मैंने आपको अपना वो तजर्बा बताया क्या तरीक़ाकार है। मैं उधर बैठ गया, आराम से बैठा हूँ, मैं आप सब लोगों को देख रहा हूँ, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। मेरा एक अपना स्टाइल है, इंशाल्लाह ताला हम लेके आपको श्योरिटी आपने ले लेना है। मुझे दे देंगे, मैं कहता हूँ ये मुझे दे देंगे, यकीन करें। उसकी वजह मैंने अप्रोच डाल दी है इसको, साथ वाले हमसाए वो भी आ रहा है, इधर से एक बंदा पकड़ा, उन्होंने कहा ये आपको अभी हो सकती है डील मौके पे कैमरे के सामने? नहीं, मौके ये जरा कुछ खुफिया बातें होती हैं, उसकी वजह प्यार की खुफिया बातें। कोई कस्टमर ऐसा भी होता है ना, उनके नॉलेज में आ जाता है यार कि ये तो ऐसे दे रहा है, तो इसलिए ये खुफिया बात होगी। अल्लाह की राह पे दिखावा थोड़ा करना है, दिल से चीज देनी है, लुका के भी दे सकते आपको लगता है इनका प्यार आपको जीत लेगा? मुझे पता है वो बहुत अच्छे इंसान है, मुझे शायद मेरी अम्मा समझ से ज्यादा दे दें। अच्छा। हमें पता होता ना इस जानवर का आखिरकार इसको कितने का पड़ता है, ये कितने में देगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने आपको पहले भी गुजारिश की है, मेरे बाप दादा का ये काम था। और एक टाइम ऐसा था भाईजान, एक टाइम ऐसा था कि हमारे घर में एवरी डे गोश्त ही पकता था। सर केरी बरादरी एवरी डे गोश्त ही पकता था। तो मेरी वालदा साहबा कहती थी भलिया लोका साढ़े घर गोश्त ही आना, सब्जी नहीं आनी। तो मेरे बुजुर्ग कहते थे कि जब मैं मर गया ना तो फिर तुम्हें याद आएगा कि गोश्त आना या क्या आना। उसके मरने के बाद यकीन करो सब्जी आना भी मुश्किल है, जो हालात जा रहे हैं। तो वो एक वक्त था, वो एक ज़माना था, वो एक कारोबार था, हम करते थे, इसी कारोबार में पले जमे हैं, सीधी सी बात है। इसी कारोबार से भाइयों को ग्रेजुएशन, और कोई अमेरिका में, कोई इधर है, अलहम्दुलिल्लाह तो बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है हमारा, सारा ठीक है। आपको मिलकर बहुत खुशी हुई है मुझे, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे मोहल्ले के साथ रहते हैं, हर जुम्मा हमने खलील अहमद काबरी मस्जिद यहाँ पे अदा किया। साथ ही सखी सैसू का मज़ार था, और पीछे और जंगीर बदर का घर था, सारा देखा। ठीक है ना? बचपन आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। माशाल्लाह बड़ा सोना जानवर है, तो ठीक ठाक सोना है। किन्ने देगा जी? ये माशाल्लाह दा 42 लाख रुपया मांगे, यानी 40 लाख और 2 लाख, 42 लाख, 42 लाख जी भाई। ये क्या इसमें ऐसी खसूसियत है जो आप इसका 40-42 लाख मांग रहे हैं? छोटा बच्चा सी जो असीं लैके पालिया, ठीक है। ये 15 लाख रुपए का उदों लिया सी। 15 लाख का लिया? 15 लाख रुपए का उदों लिया सी जब छोटा था। छोटा 3 साल सामने जी। ठीक है। अभी इसकी क्या एज है? अभी इसकी एज तकरीबन होनी है, वजन पूछते नहीं, उम्र कितनी है? उम्र दी है जी तकरीबन 4.5 साल। 4.5 साल। हाँ जी। और ये कौन सी नस्ल से है? ब्राह्मण। ब्राह्मण, बिल्कुल ठीक है। तो इसका अब आप 40 लाख मांग रहे हैं? जी भाई। तो आपको लगता है इतना रेट मिल जाएगा आपको? 32 लाख रुपया तो भाई तरले कर रहे हैं। 32, 3.5 साल, 4 साल। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसकी औसतन उम्र क्या होती है? उम्र तकरीबन 5 महीने का वे तो दोंदा होंदा। अच्छा जी। अभी ये दोंदा या चोगा है? अभी ये 2 चौका हो गया। चोगा हो गया हुआ है।
जी कितने साल से आप इसकी खिदमत कर रहे हैं? भाई तकरीबन 4.5 साल हो गए। 4.5 साल से। अच्छा, इसे खिलाते क्या, इसकी डाइट क्या है? इसकी डाइट भाई है गंदम ठीक है, और हरे पत्ते मकई। मकई और गंदम। वजन ज्यादा 29 मन। 29 मन हाँ जी, इस तरह ही जिंदा का। जिंदा का। 29 मन, जी भाई। ठीक है। तो डेली इसकी खुराक पे, डाइट पे कितना लगता है? तकरीबन 2500 रुपये 2500 रुपया। डेली का। और कितने टाइम से आप लगा रहे हैं? तकरीबन 4.5 साल हो गए। 4.5 साल हो गए। जी भाई। अल्लाह के बंदे, जब आपको 32 लाख इसका लग गया है तो आप इसको बेच देते? बेचेंगे इंशाल्लाह 40 लाख का। 40 से कम नहीं? नहीं, घर ले जाएंगे, फिर घर ले जाएंगे? फिर घर ले जाएंगे। नहीं, अगर आपको खुदा न ख्वास्ता पूरा साल फिर इसकी निगहदाश्त नहीं, करें? क्यों करेंगे, अल्लाह की राह पे दे देंगे इसको। ठीक है। और वो जो सफ़ेद जानवर है वो बड़े खूबसूरत है, ये जी जरा भाई, वो उनका मांगते हैं 32 लाख रुपये। इसका भी दोनों का यानी तकरीबन 16 लाख। जी भाई, प्योर गुलाबी है, प्योर गुलाबी। प्योर गुलाबी गुलाबी नस्ल। नहीं नहीं, ना खोलिएगा ना, ऐसे तंग तो नहीं, मारता तो नहीं? कुछ भी नहीं दूंगा। तो इसका क्या अब तक आपको लग चुका हुआ है? इनका भाई दे रहे हैं 23 लाख रुपये दोनों 23 को। लाख दोनों का लग हाँ, चुका है। 11.5। तो इसकी क्या ये दोंदे हैं, चोगे हैं? ये दोंदे हैं, दोंदे हैं। दोनों ही। इसकी खुराक क्या है? खराक गंदम ही है और मकई, गंदम और मकई। बस। वजन कितना होगा इसका? इसका वजन तकरीबन होगा 14 मन। 14। व्यूअर्स, इसका अगर आप देखें, ये जानवर है, भाई कह रहे हैं जी इसका 16 लाख एक और 16 लाख दूसरे का। आप ये देखें, तकरीबन 32 लाख इन्होंने इसका रेट लगाया है। और हम किसी को ये नहीं कह सकते आप इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं, हर बंदे की एक डिमांड है। क्या कह रहे हैं? हुसन के पैसे हैं। हुसन के पैसे हाँ, हैं। कुर्बानी हुसन की है। अगर कुर्बानी देनी है वो तो 2 लाख का भी लेके दे सकते हैं। ये हुसन के पैसे हैं, खूबसूरती के। हाँ, खूबसूरती के। इसका गोश्त कितना होगा? गोश्त इसका होगा तकरीबन 8.5 के अंदर बात। 8 मन होगा हाँ, तकरीबन। तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ठीक। ये देखो ना, आगे पीछे से एक है। ये नहीं है कि आगे से मोटा है पीछे से बारीक है, नहीं, आगे पीछे से एक है। ये आप देख सकते हैं, माशाल्लाह जानवर तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं, खूबसूरत है। लेकिन इस दौर में, इस महंगाई के दौर में, क्या कोई शख्स 32 लाख के 2 जानवर ख़रीद सकता है? और भाई के बकौल वो जो ब्राह्मण इन्होंने दिखाया है वो नस्ल का, वो तो कहते हैं उसका 32 लाख लग चुका हुआ है। तो आपको अभी तक इसका कितना रेट लगा मैक्सिमम? 23 लाख रुपया दोनों का लग चुका हुआ है। दोनों ही देने हैं, एक नहीं देना। एक नहीं देना? छोटे से ही दोनों पाले हैं। भाई हैं इकट्ठे हैं, एक ही नस्ल से हैं? एक ही नस्ल, गुलाबी। गुलाबी। तो बचपन से पाले हैं आप? हाँ, इनकी उम्र ये क्या? हमारे पास गाय हैं जो हम जिसके बच्चे लेते हैं। अच्छा, 15-20 गाय हम बच्चे लेते हैं, ये घर के बच्चे हैं। ठीक है। ये भी घर का, वो भी घर का। वो मुल्तान मंडी से लाया था। मुल्तान मंडी से जो ब्राह्मण है। वेयर साहब, आप ये देख सकते हैं कि जानवर वाकई खूबसूरत है, लेकिन क्या आम आदमी की इस वक्त जो क़ुव्वत ख़रीद है वो अफोर्ड कर सकती है या नहीं? असल सवाल ये है। वैसे मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैं नहीं मारता नहीं है इसके। चलें, अल्लाह ताला जी कुर्बानी कबूल करे। सुन्नत इब्राहिमी है, ठीक है, और अल्लाह ताला आसानी करे। कर रहा हूँ, प्यार ही कर रहा हूँ। इसका क्या रेट है? ये 3.5 लाख का रेट है। साहिवाल का जानवर है। साहिवाल का जानवर जी है। सर। कोई मोहब्बत हो तो कोई देखने वाले को पसंद है, कितना हाँ कम जी। किया जा सकता है? 3 का दे दूँगा। 3 का दे दें? जी सर। इसका कितने किलो गोश्त होगा? 4.5। 4.5। दोंदा है, चोगा है? नहीं, दोंदा पक्का। दोंदा है, ठीक है। 3 का आप दे सकते हैं? हाँ जी। 3 में आपको लगता है इंशाल्लाह ताला बारे में आ जाए? हाँ जी, जी जी। तो ये कौन सी नस्ल है? ये साहिवाल की है। साहिवाल की नस्ल। आप कितने जानवर लाए हैं ये? मैं जी 50। 50 जी माशाल्लाह। जी। किससे का पीछ रहा? दिहाड़ी मजदूर हैं जी। अच्छा, मजदूर हैं, किसी के लेकर जी आए जी। हैं? तो अभी अब तक कितने बिक चुके हैं? 20 बिक गए। मंडी में रुझान क्या, लोग खरीदने हाँ आ रहे जी, हैं? काफ़ी आ रहे हैं। यानी अच्छे महंगाई- लोग हैं। महंगाई का कोई तासुर तो नहीं है कि नहीं महंगाई नहीं, है, ठीक लोग है कुर्बानी नहीं कर सकते? अखलाक अच्छा कर रहे हैं। दोस्त, ये जो जानवर हैं इस वक्त क्या रेट है? मिसाल के तौर पे एक अल्लाह ताला, ये आपका अपना माल है?
हाँ जी भाई है अपने ही हमारे। चलें, ये माशाल्लाह खूबसूरत जानवर है, लेकिन इतना कोई वो नहीं है, बड़ा जानवर नहीं। इसका क्या रेट है ताकि हम दिखा सर जी 1,20,000 रुपये। 1,20,000 जी सर क्या करे, पीछे से माल बड़ा महंगा आ रहा है यार। उसका जिंदा का कितना गोश्त होगा भला? सर इसका जिंदा का माशाल्लाह होगा कोई 80 किलो है, 70-80 किलो। की कह रहे हो रखे वाला मैंने पूछो। अच्छा मुझे पूछो जो पूछना। क्या रेट है सर इसका? 1,20,000? नहीं, ये 90,000 का है। 90,000 90 का है। काला वो है 240 का। 2,40,000 का। हाँ, उसका 1.5 मन गोश्त है इंशाल्लाह। ये दोंदा चौका है। चौका है। हाँ जी, जिंदा 120 किलो हैगा, आधा गंद निकलेगा आधा गोश्त निकलेगा। 50-50 सर महंगाई 3,000 ਨੂੰ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਰੇਟ। महंगाई ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੋਈ महंगाई नहीं हैगी। महंगाई नहीं हैगी? कोई महंगाई नहीं। 4,000 ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਪੈਣਾ, 3,000 ਨੂੰ ਕਸਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਸਾਈਆਂ को ਲੈ के। यार जरा वो दिखाएं जो आप 2,40,000 का कह रहे हैं। लेकर आए जी ये बकरा जी। अब आप अंदाज़ा लगा लें, ये मार्केट का इस वक्त जो रुझान है, ये सर मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ देना कोई ज्यादा मूल्य नहीं है। ये इस वक्त 2,40,000 रुपया। 2,40? 2,40 कह रहे हैं। 3.5 ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਪਾਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ। ਇਹ ਫੜੀ ਕੋਈ रेट है जेड़ा मर्जी ले लो। 2,40 ये भी चौका है। इससे भी बड़ा है ये वाला। आ रहे हैं चाचू, आ रहे हैं। इंशाल्लाह चीज़ां अच्छियां लेके जाएगा। जेड़ा बंदा भी आएगा गुली दाना देसी माल खांदा जानवर अपना। ਇਹ ਸਾਰਾ ਛੋਲੇ ਦਾ ਦਾਣਾ, गुली कनक, खुराक अच्छी है इन्हां दी, गोश्त च लसत है। ये कौन सी नस्ल है? कौन सा? मक्खी चीने देसी, आसलपुर, भावल नगर, चक मदरसा। व्यूअर्स अगर आप देखें तो ये जो 3 जानवर हैं माशाल्लाह अच्छे जानवर ने, सब हाँ, पले माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी कबूल अल्लाह करे। हर बंदे की कुर्बानी कबूल करे। आमीन। अल्लाह ताला हर इंसान की कुर्बानी कबूल करे। सुन्नत अल्लाह इब्राहिम। इज्जत दे, ईमान दे। बस इज्जत ईमान है तो सब कुछ है। तो ये आपको लगता है कि 2,40,000 में लोग ले जाएंगे? ये 2 लाख से 20 ऊपर बिक रहा है। 2 लाख तक 10, 20, 2 लाख का भी दे देते हैं। कोई मोहब्बत प्यार वाला आए तो हम जो भी इसका कम से कम अगर किसी ने लेना हो, कोई मसलन देख कर आना चाहे, तो आप कम से कम कितना देंगे? अगर कोई रियायत कीजिए तो कितनी रियायत करेंगे? फाइनल 2 लाख का। 2 लाख का। ये 2,60 का? नहीं, 1,60 का। 1,60 का। ऐसा जैसा जानवर होगा वैसा ही रेट होगा। ये 1,20 का, वो 1,60 का। हाँ जी आप बताएं। महंगे हैं यार, क्या बताएं। महंगे हैं? 90,000 लगा दिए, और क्या लेना है इसमें। वो भाई इतने का ही आता है। ओ नहीं भाई, 90,000 लगा दिया आपके सामने, और क्या लेना। 90,000 90,000 लगा रहे हैं इसका। ये कोई बात नहीं, और रुपया लावन गुस्सा नाराजगी नहीं, भाई ने हो 80 मांग लेने का मदन है। 30 किलो है। ओके ही करना, गोश्त चेक करना ना। थोड़ा चुक तो सही, थोड़ा दोनों की करना है। 30 किलो से ऊपर वजन नहीं है अंदर। 30 किलो में पैसे नहीं लांगा तेरे को। हाँ जी गया ना बाद में। हाँ फ्री देंगा तेन। 2 लाख दांगा जे 30 किलो ज्यादा है। मैं चुक तो सी तेन अंदाजा थोड़ा चुकन की कहना यार। चुकेगा तो पता लगना है दादा है तेरे को। सिमर का तोड़ा है ला सही होती है ना तो कितना है? 30 किलो मसा 35 किलो। हाँ जी। और नहीं 35 90,000 ਦਾ ਚੈਨਾ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿੰਧੀ ਨਵਾਬ ਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਇਹ ਦੇਸੀ ਮੱਖੀ ਚੀਨਾ ਹੈ, ਬੋਸਕੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ, तेरे मेरे ने कुछ भी नहीं लेना। नहीं लेना। 90,000 का नहीं मिलता ऐसा यार। यहाँ पे इतने रेट ज्यादा मांग रहे हैं, पर इतने रेट है नहीं जितने मांग रहे हैं। ज्यादा मांग रहे हैं। 1.5 लाख वाली चीज का 3-3 लाख मांग रहे हैं। एंड पे इन्होंने घर में लेकर जाने, यही होना बस। पीछे से बहुत बड़ा महंगा माल है, पीछे से बहुत महंगा माल है। कैसी बातें करते हो आप। इन लोगों ने ऐसे ही रेट मांगने, एंड पे इन्होंने घर लेके जाने बस। वो सीन खत्म हो गया, अब वो चक्कर नहीं रहा। वही चक्कर है। इस बार आप भूल जाए। आप खरीदने आए हैं? हाँ मैं खरीदने आया हूँ। बहुत ही रेट, बहुत ज़्यादा रेट है। बहुत पहुँच से, गरीब आदमी की पहुँच से बहुत ही ज़्यादा रेट। जी व्यूअर्स अब हमारे साथ तर्जुमान पंजाब कैटल मार्केट एंड डेवलपमेंट कंपनी के जो भाई हैं हमारे, और इनकी मोहब्बत ये टाइम दे रहे हैं, शेख हसन साहब मौजूद हैं। जो भी यहाँ के इंतज़ामात हैं, जिस तरह भी इस वक्त पंजाब हुकूमत ज़िले इंतज़ामिया जो है मवेशी मंडी को लाहौर की शाहपुर कांजरा, जो इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट इन पाकिस्तान, बल्कि मैं कह सकता हूँ
इसके मतलब क्या क्या तैयारियां की हैं हुकूमत ने, ज़िले इंतज़ामिया ने, अब शेख साहब बताएंगे। शेख साहब तैयारी क्या है? आवाम तो चलें आएगी, ख़रीदो फ़रोख्त करेगी, सुन्नत इब्राहिमी है, पंजाब हुकूमत की क्या तैयारी है? सर जितने भी इस मॉडल कैटल मार्केट लाहौर के इंतजाम हैं वो पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी देख रही है। अगर आप देख रहे हैं ये मॉडल मंडी का दाखिली रास्ता है, इसके साथ ही हमने डेडिकेटेड कार पार्किंग दी है, साथ ही हमने रेस्ट एरिया दिया है, हमने उसी के अंदर रेस्क्यू 112 की कैंप है, लाइफ स्टॉक का कैंप है, वेटरनरी ह्यूमन केयर का कैंप है और शिकायत सेल यहाँ पे मौजूद है। अगर आप देखें तो आगे रोड्स है, उसके साथ मस्जिद है, मोबाइल बैंक सिस्टम है, व्यापारियों को हमने पक्के शेड दिए हैं और वहाँ पे पानी की फैसिलिटीज़ है। उसी हमने ब्लॉक वाइज कैटेगराइज किया है लार्ज एनिमल्स और स्मॉल एनिमल्स को। इसमें हमने वॉशरूम की फैसिलिटीज़ दी हैं, टक शॉप्स दी हैं, जानवरों के खुलियाँ दी हुई हैं पानी की, तो हम जो मैक्सिमम फैसिलिटेट कर सकते हैं वो कर रहे हैं हम यहाँ पे ना। ठीक है। अच्छा शेख साहब, बाज़ औक़ात व्यापारियों की तरफ से ये शिकायत होती है कि हमसे नाजायज़ मुनाफा लिया जाता है पानी मांगने पर, खल मांगने, पंजाबी च खल कहते हैं, खल मांगना चाहिए, यानी उनका चारा मांगने पर। तो इस दफ़ा इसका कोई सदेबाब किया गया? देखिए इस बार तो वाफर पानी है, 50,000 गैलन की हमने वाटर टैंक बनाया है, पानी बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे मिल रहा है, 24 घंटे पानी मिल रहा है, बल्कि लोग जानवरों के साथ साथ खुद भी नहा लेते हैं। अच्छा। इतना पानी आप मंडी के अंदर आके देखेंगे तो यहाँ पे अब अल्हम्दुलिल्लाह मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद यहाँ पे तमाम तर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। ये प्रोजेक्ट जो है लास्ट ईयर मैडम CM साहिबा ने इसका इफ्तिताह किया था और ये जो प्रोजेक्ट का इनिशिएटिव लिया था वो हमारे चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इब्राहिम तारिक शफी साहब ने किया था। 8 माह की कलीन मुद्दत में FW ने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। लाहौर के दिल में ये वाक़ई प्रोजेक्ट है और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि लाहौर की बड़ी तादाद लाहौरी शाम के टाइम आते हैं यहाँ पे इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है। अच्छा अगला मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई जानवर बीमार हो जाता है या कोई व्यापारी बीमार हो जाता है, उसके लिए कोई हेल्थ यूनिट्स वगैरह बनाए यहाँ पर? अब बिल्कुल, अगर जो जानवर बीमार होते हैं उसमें यहाँ पे लाइफ स्टॉक के भी कैंप है, हमारा अपना वेटरनरी भी स्टाफ मौजूद है, जबकि ह्यूमन साइड पे यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट का कैंप है, साथ साथ रेस्क्यू 112 की टीम मौजूद है कि जो भी अगर कोई कॉल आती है तो वो फ़ौरन वहाँ पे एक्टिव होते हैं, वहाँ पे ऑन द स्पॉट जाते हैं और जो ज़ख्मी होता है या भी कोई भी मसला होता है उसको हल करते हैं। ठीक है व्यूअर्स, आपने शेख साहब से ये सुना कि इस वक्त यहाँ के जो इंतज़ामात हैं, वाकई अगर कैमरामैन साहब को मैं कहूँ कि कैमरा उस तरफ करें तो पार्किंग के तो बेहतरीन इंतज़ामात नज़र आ रहे हैं और सड़कों पे भी मुझे बिल्कुल सफाई नज़र आ रही है। बात वो करनी चाहिए जो हकीकत पर मबनी हो, क्योंकि बाज़ औक़ात तनकीद की जाती है, जहाँ तनकीद होगी हम करेंगे। आप ये देखें इस वक्त माहौल जो है यहाँ पर, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में और वालेकुम सलाम यार बॉस कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? नहीं कोई मसला नहीं, आपकी मोहब्बत आप मेरी जान। नहीं ऐसे मिलते हैं नीचे होके नहीं। आप ठीक है, खैरियत से? बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, थैंक यू। ये भाई आगे मोहब्बत करने वाले। तो कहने का मकसद है कि वाकई अभी तक इंतज़ामात अच्छे नज़र आ रहे हैं। अच्छा शेख साहब, एक और बात, यहाँ पर कैंटीन्स वगैरह बनाई गई, कैंटीन्स और इस तरह की दीगर चीज़ें? बिल्कुल, हमने शेड के अंदर ही उसके साथ ही जहाँ बैतुल खला की और वाटर फिल्ट्रेशन की फैसिलिटी दी है, साथ ही हमने कैंटीन्स दी हैं। इसके अलावा भी बहुत सी कैंटीन्स हैं, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, उस पर रेट लिस्ट लगी हुई है ताकि कोई भी बंदा ओवर चार्जिंग ना कर सके। हमारी अपनी टीमें भी मौजूद हैं जो कि वक्फा वो चेक करती रहती हैं कि यहाँ पे कोई ओवर चार्जिंग के तो नहीं इस तरह का मसाइल, और अगर इस तरह की कोई मसाइल होते हैं तो मैं आपके चैनल के ज़रिए बताना चाहता हूँ कि हमारा शिकायत सेल मौजूद है, 1233 हेल्पलाइन मौजूद है, उस पर भी आप कॉल करके यहाँ पे हमें इतला दे सकते हैं। हमारी टीमें 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल हैं।